everyone. I hope all of you are doing well. So, वालेकुम सलाम सर। before we start today's topic, if there is any question regarding the previous discussion, previous topics, let's begin with it. You can either write your question or you can open up your mic and talk. Walaikum salam to everyone who have said salam. Ji, anyone, someone. Walaikum salam. Ji, any question? Okay, today we are going to study the new topic, and that is verb. Though we have been describing verb in different ways, during the discussion of sentence, we describe verb, right? Today we'll see it into in detail that what actually verb is and how it controls the other element of the sentence, right? So let's begin with it. Okay, we start with the same basic structure of the sentence. Subject, verb, object, complement, and adverb. So today we are going to see that how we can fill different slots of these components and which components are permitted with which verb and which are not permitted with which verb, right? But this should not be get out, it should be in your mind, right? So SVOCA, let's see that what actually they are. So again, we have the infinitive, bare infinitive, present participle, past tense, and past participle. So these are the 5 forms, and 2 of them are finite, and 3 of them are non-finite. Finite forms are restricted by time, like bare infinitive and past tense, and 3 are not restricted by time, like infinitive, present participle, and past participle, right? So they can be used as other parts of speech like verb, like noun, like adjective. We'll see them how they are used, right? So now let's look at the definition of verb. Verb is a verb that describes some action or state of the subject, right? This is very important, of the subject, because action is of the subject. The boy played excellent cricket. So the verb play describe the action of the boy, and that the boy did the action of playing. So played is the verb in this sentence. So it's an action verb. The boys seem excellent cricketers. So if you look at this, the boys seem excellent cricketers. Here the verb is seem, right? So this verb seem does not explain or does not describe the action of the boys as in the first sentence. Rather, it describes the state of being of the verb, right? Right? It's tell that the boy are in the state of being excellent cricketers. They haven't done any action, right? So this verb is state of being. We can also say the boys are excellent cricketer. Again, in that example,
the verb are will be straight off being verb. We are going to study in detail these state of being verb today. The shortest sentence contains a verb. You cannot make a one-word sentence with any other type of word. I mean, no other parts of speech we can make a sentence, but with verb we can make a sentence. As you can see the example, stop, right? So it makes a complete sentence. Listen, it also makes a complete sentence. So these are two examples of the uh, of the single word sentences, and these words are only verbs. Any question? If you can have any question, you can let me know if there is any question. No? Okay, that's great. All clear. Thank you. So if you look at this, there are some sentences written before us. Thank you. If you look at this, there are my son is a doctor. My son is a doctor. Here the verb is. The child laughed. Here the verb is laughed. He went home late. Here the verb is went. The student wrote intelligent essays. Here the verb is wrote. He gave me a flower. Here the verb is gave. They elected him class representative. Here the verb is elected. It is actually they. It is just a minute. So they put the book on the table. There is one sentence more which is hiding. We'll look at it, that sentence in the next. So my son is a doctor. The subject is my son, and the predicate is a doctor. The child is the subject, laughed is the predicate. He is the subject, went home late is the predicate. The student is the subject, wrote intelligent essays is the predicate. She is the subject, gave me a flower is the predicate. They elected him class representative. They is the subject, elected him class representative is the predicate. They put the book on the table. They is the subject, and the book on the table is the predicate. One thing is there that all these sentences have verbs. So you is a linking verb or copular verb. Laughed is a linking verb. Uh, this is intransitive verb. We call it intransitive verb. Uh, uh,
So the child laughed is intransitive verb. We went home is also intransitive verb. The student wrote intelligent essays is transitive verb. She gave me a flower. We call it double transitive verb. Why we call it double transitive verb? We are going to see it. They elected him class representative. This is verb of incomplete predication, or we can also say a complex verb. We can also say a complex verb. The verb, they put the book on the table. It's also a verb of incomplete predication. Now, these verbs are very important because understanding these verbs is very crucial. What type of sentence structure do they make? So, if you look at the next sentence, right? So this sentence is Ali carefully researched or reached the room. Let's make it this way. Now the verb is reached, right? Ali is the subject, carefully is the adverb, reached is the verb, and room is the object. So the structure of the sentence is SAVO. And this is a transitive verb. What is a transitive verb? Any idea? What is a transitive verb? Anyone, someone? Transitive verb. Transitive verb. Hmm. The girl is now a student at the university. The girl is subject, is a verb, now is an adverb, a student is a complement, and at the university is again an adverb. So let's see what is the transitive verb is a verb that has object to some. ठीक है, I agree, it's an object, लेकिन इसकी definition होगी. इसको अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं? देखें, दो तरीके से हमने वर्ब को कर लिया है. एक है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब और एक है एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब जो है वो दो तरीके का होता है. एक्शन वर्ब इज ऑफ टू टाइप. एक एक्शन वर्ब है जिसका एक्शन जो है वो किसी दूसरी चीज पे इफेक्ट करता है. जैसे ये पहला जुमला है, अली केयरफुली रीच द रूम. अब ये रीच जो है ये एक्शन को शो कर रहा है और इसका रिसीवर जो है ये रूम है. तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. अली द गर्ल इज नाउ अ स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी. अब इसमें इज जो है कोई एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि इज सिंपली क्या कर रहा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है कि गर्ल इस फिक्रे की जो सब्जेक्ट है वो किस हालत में है. तो पता लगेगा कि वो एक स्टूडेंट है. अब हाँ, when the action the verb passes from the subject to the object, ये इसकी डेफिनेशन है. ठीक है. अब एट द यूनिवर्स नाउ टाइम को शो कर रहा है, तो ये टाइम को जो लफ्ज शो करता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. एट द यूनिवर्सिटी ये प्लेस को शो करता है, तो जो लफ्ज जो यूनिट प्लेस को शो करता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है. तो ये भी एडवर्ब है और नॉ भी एडवर्ब है. अब इस जो है ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब जो है ये सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रहा है. लिंकिंग वर्ब अकेला जो है, लिंकिंग वर्ब अकेला फिक्रे को नहीं बना सकता. जैसे पीछे हमने देखा था कि द चाइल्ड लाफ में लाफ वर्ब जो है उसने चाइल्ड के साथ मिलके अकेला
फिक्रे को बना दिया, यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो फिक्रे को अकेला बना सकता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब जो है वो फिक्रे को अकेला नहीं बना सकता। इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट का मैंने तर्जुमा आपको बताया था, दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ समथिंग एल्स, दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ समथिंग एल्स। तो द गर्ल इज अगर होता तो गर्ल इज जो है उसको हम, उससे हम मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर सकते थे, और जैसे ही हमने कहा द गर्ल इज अ स्टूडेंट, तो हमारा सेंटेंस जो था वो कंप्लीट होगा। बाकी नाउ एंड एट द यूनिवर्सिटी ये एक्सटेंशंस हैं, ये मजीद मालूमात हमने दे दी है, और वो हम और भी मालूमात जो है वो दे सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो है ये लिंकिंग वर्ब जो है इसके बारे में, कि ये लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिंक करता है, और कभी भी अकेला नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट इसके लिए जरूरी होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एस वी सी बनता है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट बनता है सेंटेंस का, ये सेक्टर SVACC हमने इसलिए किया है कि वी के बाद एक नाउ एडवर्ब आ गया, और सी के बाद एक और नाउ एडवर्ब आ गया, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस तरह सेंटेंस थर्ड में हर ब्रदर ग्रू हैप्पियर ग्रेजुअली। अब इसको भी देखें, ग्रू जो है, अब ग्रू भी, हर ब्रदर तो सब्जेक्ट हो गया, ग्रू जो है ये हमारा वर्ब है, राइट। और ये हमारा वर्ब है, सॉरी, ये फिर असल में ये ग्रू हमारा वर्ब है, और हैप्पियर जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, और ग्रेजुअली ये हमारा एडवर्ब है। ये हमारा इधर भी, ये असल में इधर भी जो जो है ना, ये भी है, राइट। अब ग्रू जो है ये एक ऐसा वर्ब है जो कि स्टेट को शो करता है, स्टेट को शो करता है, यानी ये, और अब अगर हम इसको कह दें हर ब्रदर ग्रू, उसका भाई जो था वो जवान हो गया या हो गया, तो इसमें जो मफहूम जो है होगा वो इनकम्प्लीट होगा। तो जैसे ही हम हैप्पियर करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ग्रेजुअली जो है ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्या, क्योंकि ये जवाब आएगा, हाउ का जवाब आएगा, ग्रू हाउ ग्रेजुअली, तो हाउ का जवाब जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। तो ये हमारा SVCA, और ये ग्रू हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। इट रेन स्टेडीली ऑल डे, अब इट रेन्ड, अब रेन जो है ये हमारा, इट सब्जेक्ट है, रेन वर्ब है, और स्टेडीली कैसे हुई, रेन कैसे हुई, स्टेडीली हुई, और कब हुई, ऑल डे हुई। तो ये दोनों हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ही हैज गिवन द बॉय एन एप्पल। अब इसको देखें कि वर्ब हमारा क्या है, हैज गिवन, हु हैज गिवन, ही, और हैज गिवन व्हाट, द एप एन एप्पल। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द बॉय गिवन टू हुम द बॉय, ये हमारा बी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो उनको हम कहते हैं डबल ट्रांजिटिव कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव भी कह देते हैं, डबल ट्रांजिटिव। इसमें होता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट पे काम होता है और एक के लिए काम होता है, एक ऑब्जेक्ट पे काम होता है और एक के लिए काम होता है,
यानी गिवन व्हाट अगर कहेंगे तो एप्पल आ जाएगा, गिवन टू whom कहेंगे तो बॉय आ जाएगा। तो वर्ब प्लस व्हाट होएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होएगा, और वर्ब प्लस टू whom या टू व्हाट होएगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये सेंटेंस भी जरा गौर से देखिएगा। दे मेक हिम चेयरमैन एवरी ईयर। अब व्हाट्स द वर्ब मेक? हु मेक? दे मेक। मेक व्हाट और whom? हिम। और दे मेक हिम व्हाट? चेयरमैन। वेन? एवरीवेयर। इसमें चेयरमैन जो है इसका ताल्लुक किसके साथ है? पिछले जुमले में देखें कि पिछले जुमले में गिवन जो था बॉय और एप्पल दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हम इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा कि एक के लिए काम होता है और एक पे काम होता है और एक के लिए काम होता है। और हिम और चेयरमैन जो है ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। चेयरमैन कौन है? हिम। और हिम कौन है? चेयरमैन। तो यहाँ असल में अगर फिक्रे को यहाँ छोड़ दिया जाता तो दे मेक हिम, अगर कि यहाँ दे सब्जेक्ट, मेक वर्ब और हिम जो है ये ऑब्जेक्ट होता, लेकिन इसके बावजूद सेंटेंस की सेंस जो थी वो कंप्लीट नहीं होती। तो इस वजह से एक लफ्ज लाया गया है कि जो सेंस को कंप्लीट कर देता है, और जिस लफ्ज की वो सेंस कंप्लीट करता है वो ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर आप इस फिक्रे की तरफ आ जाएं, ये पहला फिक्रा था। दूसरा फिक्रा, द गर्ल इज नाउ अ स्टूडेंट। तो इसमें स्टूडेंट जो है ये किसके मीनिंग को कंप्लीट करता है और किसकी तरफ जाता है? ये सब्जेक्ट की तरफ जाता है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को आमतौर पे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, और इस कॉम्प्लीमेंट को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ये एक हमारा वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहलाता है या कॉम्प्लेक्स वर्ब भी कहलाता है। और ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला कॉन्सेप्ट है। और सतवां सातवां जुमला जो है वो है द विंडो ब्रोक। अब इसमें फेल क्या है? ब्रोक। और किसने तोड़ी है? ये द विंडो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या विंडो ने तोड़ी है? तोड़ा अपने आप को? कोई बंदा मुझे जवाब देगा इस पे? एनीवन? समवन? एनीवन वुड आंसर मी अबाउट? कोई आदमी जवाब दे। कभी किसी ने इस तरह का सेंटेंस सुना हो? आई एम वेटिंग। कोई नो वन? अच्छा, सेक्स तक की समझ आ गई है ये बताते हैं। चले आप भी बताएं, सेवन की समझ नहीं आई? आपने ट्रांजिटिव वर्ब का भी सुना होगा, आपने इंट्रांजिटिव वर्ब का भी सुना होगा, आपने लिंकिंग वर्ब का भी सुना है। मैं खुद भी इसको आ, कहता रहा हूँ। डबल ट्रांजिटिव का चलें कुछ ने सुना होगा, कुछ को आज पता लग गया। ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कॉम्प्लेक्स ये वाला भी है। ये जो है द विंडो ब्रोक, ये इसको हम
इरगेटिव वर्ब कहते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्टिव होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर में जो वर्ब होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वही उसका सब्जेक्ट बन जाता है। यानी किसने तोड़ी ये इसमें है ही नहीं, लेकिन क्या चीज टूटी ये है। तो ये एक तरह से इंट्रांजिटिव बन जाता है, इंट्रांजिटिव बन जाता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में तो ऑब्जेक्ट होता नहीं, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। और ये एक क्या कहते हैं, किसी बाज दफा किसी चीज को बहुत स्ट्रेस करने के लिए उसी को पहले ले आते हैं, और ये एक स्ट्रक्चर बड़ा आके एक स्ट्रक्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं द डोर ओपन्स। अब ये जुमला आप बेशुमार दफा बोल होंगे, डोर ओपन्स। ये वो चीज है कि डोर खुद ब खुद ओपन तो नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। ये इंट्रांजिटिव ही की, इंट्रांजिटिव इसलिए नहीं हो गया कि इंट्रांजिटिव में जो सब्जेक्ट होता है ना वही अपनी जगह पे होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने पीछे मिसाल दी द चाइल्ड लाफ्ड, तो इसमें लाफ करने वाला भी चाइल्ड था, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। इसी ये तरह लंबा ही कर दिया, वेंट होम ये लंबा में कर दिया है। जाने वाला भी वो था, सब्जेक्ट था। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये इसको एग्जैक्टली इंट्रांजिटिव नहीं कहते, इसलिए हमने इसका नाम इरगेटिव वर्ब जो है वो रखा हुआ है। तो ये वर्ब है, ये कुछ वर्ब्स की किस्में हैं जिसको हमने बयान किया है। इसको आप जरा देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। Verbs are sometimes described as action verb. This is partly true. Many verbs give the idea of action, of doing something. For example, word like run, fight, do, and work all convey action. He's running, I work hard. But some verbs do not give the idea of action. They give the idea of existence, of state, or of being. यानी किसी चीज के होने का, किसी चीज की हालत वगैरह का बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ब्स लाइक बी, एग्जिस्ट, सीम एंड बिलोंग ऑल कन्वे स्टेट। आई एम टीचर, तो ये स्टेट बयान हो रही है। देर आर 4 बुक्स ऑन द टेबल, उनकी एग्जिस्टेंस बयान हो रही है। ही बिकेम रिच आफ्टर डूइंग बिजनेस, तो बिकेम जो है उसकी एग्जिस्टेंस जो है बयान हो रही है। तो ये सारे लिंकिंग वर्ब है। A verb always has a subject in the sentence, like Ahmed speaks English. Ahmed is the subject and speak is the verb. In simple terms, therefore we can say that the verbs are words that tells us what a subject does or is. They describe action or state. Hassan plays football, action. Ahmed seems kind, state. Main verb and helping verb. हमने इसको भी किया हुआ है, रिपीट कर लेते हैं। मेन वर्ब्स आर कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब, इनको हम लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब इसलिए कहते हैं कि दे हैव मीनिंग्स, दे हैव मीनिंग। Main verbs have meaning on their own, unlike helping verb. There are thousands of main verb and we can classify them in several ways. Ali works hard. Ali's works is the main verb. Helping verb have no meaning on their own. They are necessary for the grammatical structure of a sentence, but they do not tell us very much alone. We usually use helping verb with main verb. They help the main verb, which has this real meaning. We divide them into two basic groups, एक primary helping verbs और एक secondary। देखते हैं। They are the verb be, do and have। ये इन तीनों को हम primary helping verb करते हैं, क्योंकि verb के साथ आमतौर पे यही आते हैं। बी आपको मैं बता चुका हूं कि बी की फॉर्म टू बी, इज, आर, एम, बीइंग, वॉज, वर, बीन, ये सारी बी की फॉर्म है, और ये हमेशा हेल्पिंग कर रही होती है कभी। और ना सिर्फ हेल्पिंग कर रही होती है बल्कि टाइम को भी शो कर रही होती है। और डू, इसी तरह डू, डिड, डन, ये भी हेल्पिंग वर्ब होता है। जिस हमारे वर्ब में कोई के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है नेगेटिव वर्ब में और या इंट्रोगेटिव में,
तो उसके साथ हम डू डिड लगा देते हैं। और हैव भी हमारे सेंटेंसेस को वो ही हेल्प करता है कि ये उनमें टेंस बता अच्छा, देता है, और ये जैसे परफेक्ट जो है उसमें टेंस जा बता सकते देता हैं। है। और ये भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में से आता है। नोट, वी कैन यूज दीज थ्री वर्ब्स एज हेल्पिंग वर्ब और एज मेन वर्ब। अच्छा, ये मेन वर्ब भी आते हैं। जब हमने कहा ही इज अ प्लेयर, तो इज टू बी का इज इधर मेन वर्ब हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन जब हम कह देंगे ही इज प्लेइंग, तो इज हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख, टू मेक कंटिन्यूअस टेंस ही इज वॉचिंग टीवी, तो इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग मेन वर्ब है। टू मेक द पैसिव वॉइस स्मॉल फिश आर ईटन बाय बिग फिश, तो इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है और ईटन मेन वर्ब है। इसी तरह हैव टू मेक परफेक्ट टेंसेस, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, तो इस तरह हैव जो है इसने हेल्प की है फिनिश की टू मेक अ सेंटेंस। ये क्योंकि आपको बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम नहीं होता। इधर इज ने हमें प्रेजेंट बताया, इधर आर ने हमें प्रेजेंट बताया, और इधर हैव ने हमें प्रेजेंट बताया। Do to make negative, I do not like you. To ask question, do you want some coffee? Or to show emphasis, I do want you to pass your examination. तो ये हमारे तीनों प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। कोई कोई मसला हो तो बता दें। Anyone, someone, all clear. Modal helping verb. Thank you. We use modal helping verbs to modify the meaning of the main verb in some way. A modal helping verb expresses necessity, possibility, and changes the main verb in the sense. These are the modal helping verb. अब ये modify the meaning का क्या मतलब? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ I swim, ठीक है? तो swim का मतलब ये है कि तैरने का, मतलब मैं तैर सकता हूँ। लेकिन ये आई कैन स्विम, मेरे अंदर एबिलिटी है। तो जो सिर्फ मीनिंग था तैरने का, उसमें एबिलिटी को कैन ने मॉडिफाई कर दिया, शामिल कर दिया। ठीक है। अब मैं अगर मैं कह दूं आई मे स्विम, तो इसका मतलब ये हो गया कि मे ने पॉसिबिलिटी उसके अंदर पैदा कर दी कि मैंने स्विम करने का, तैरने का इम्कान है। राइट। आई विल स्विम, तो विल जो है वो मुस्तकबिल में, एक ये टाइम कर देगा और एक वो शदीद कर दे। इसमें इस वाले विल में जो है वो शिद्दत जो है वो पाई जाती है कि मैं काम कर सकता हूँ। आई विल स्विम का मतलब मैं जरूर स्विमिंग कर सकता हूँ। और इसी तरह ही शैल, अब जो ही के साथ विल आता है, तो शैल जब आएगा तो उसमें जरूर का मफहूम दे देगा। और मस्ट यानी लाजिमन, आई मस्ट स्विम, एक काम को जरूर करना है, आई स्विम, लेकिन आई मस्ट स्विम उस स्विम को के मीनिंग को मॉडिफाई करके उसमें एक यकीनी आंसर पैदा कर देगा। आई ऑट टू स्विम, यानी मुझे स्विम कर, मैं आई स्विम, मैंने स्विम करना है। आई ऑट टू स्विम, मुझे नहाना चाहिए, यानी उसमें एक ऑब्लिगेशन जो है वो पैदा कर देगा। तो जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं ये मॉडिफाई कर देते हैं वर्ब के मीनिंग को, कभी इम्कान के साथ, कभी पॉसिबिलिटी के साथ, कभी ऑब्लिगेशंस के साथ, कभी कंडीशन के साथ। अब वुड शुड वगैरह ये कंडीशन के साथ आ जाते हैं। कभी मॉरल यानी कंपल्शन के साथ और टू जो है। तो ये जब हम अलग से मॉडल हेल्पिंग वर्ब के चैप्टर को करेंगे तो फिर इनमें डिटेल में जाएंगे। अब ये कितनी ही चीजों के बारे में, ये सिर्फ ये कैन कुड जो है ये एक मफहूम में नहीं आते, ये बहुत सी चीजों में आते हैं, को बयान करते हैं। और एक बात ये कि कैन कुड जो है किसी एक जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं।
and he said he can swim. तो he said that he could swim. तो यहाँ can could जो है वो can के पास के तौर पे आया, या may और might इसी तरह के जुमलों में प्रेजेंट और पास के मफहूम में चले जाते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली अपने तौर पे मुख्तलिफ चीजों को बयान कर रहे हैं। यानी कुड सिर्फ पास्ट ही क्यों नहीं जाता, कुछ कुड प्रेजेंट में भी आ जाता है, माइट भी पास्ट में ही नहीं जाता, प्रेजेंट में भी आ जाता है, वुड भी पास्ट ही में नहीं जाता, प्रेजेंट के मफहूम में भी आ जाता है, शुड भी, और इस तरह बाकी भी। तो इनका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत से स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, कोई चीज आप अगर इस चीज में पूछना चाहें तो। अच्छा, semi modal verbs. The following verbs are often called semi because they are partly like modal verbs. Helping verbs are partly like main verbs. ठीक है, ये need है, ये dare है, और ये used to है। अब ये तीन वर्ब जो हैं ये जैसे you need not go, तो इधर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। आई नीड दिस बुक, तो या मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यू डेयर नॉट डू दिस, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। और यू यू ही डेयर्ड इट, मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो ही यूज्ड टू डू इट, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के एक तरह से, ही यूज्ड टू डू इट, तो यहाँ ये मेन वर्ब के, ही यूज्ड इट, तो यहाँ ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये इसको भी हम डिटेल में सेमी मॉडल वर्ब्स जो है ये देखेंगे, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा यूज टू है तो ये हेल्प को शो करता है, ये एक और मफहूम को करता है, ये एक और मफहूम को करता है, तो इसको हम देखेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। देखें इसमें थोड़ा सा ये करते हैं कि वर्ब में हम जो वो एक्शन वर्ब जो है, एक्शन वर्ब जो है वो हमारा किसी सब्जेक्ट के एक्शन को शो करता है। अब मिसाल के तौर पे ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स और डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच पासेस over from the doer or subject to an object or affects something or someone। यानी ये एक्शन को शो करता है जो कि डूअर सब्जेक्ट से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट तक जाता है या किसी चीज तक जाता है। अब मिसाल के तौर पे द बॉय रीड्स हिज बुक, लड़के ने अपनी किताब पढ़ी। अब ये इसको देखें, इस लड़के ने अपनी किताब पढ़ी, इसको मैं उर्दू में पहले करता हूँ। काम क्या हुआ? पढ़ना। किसने काम किया है? लड़के ने। काम का असर किसके ऊपर ऊपर हुआ? इस बुक के ऊपर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, ये हम इसको बच्चों को एक तरीके से अगर उर्दू में सिखाना चाहें तो ये इस तरह सिखा सकते हैं। काम क्या हुआ? काम किसने किया है और काम का अमल किसके ऊपर हुआ है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको एक तरीके से हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम इंग्लिश में क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द एक्शन रीड्स। उसके बाद रीड्स आ गया, तो उससे पहले हमने, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो हु या व्हाट है, तो हमने लगाया हु रीड्स द बॉय, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारा टू whom या सॉरी whom या what है, तो रीड्स whom, नहीं whom बंदे के लिए आता है, इधर whom का जवाब नहीं आ रहा। रीड्स what his book, फौरन आ गया चीज है। तो ये इस तरीके से हम अपना सब्जेक्ट जो है, वर्ब जो है और ऑब्जेक्ट जो है वो ढूंढ सकते हैं, और यूं हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा SVO। यानी the object of is the noun or noun equivalent that receives the action of the verb. To find object in the sentence, put what or whom after the verb. The object is of a transitive verb is called a direct object. Some verb can only be used transitively. He made something. अब मिसाल के तौर पे अगर हम कर दें he made,
तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, राइट। ये सेंटेंस जो है वो, अगरचे कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिसको हम सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, राइट, लेकिन सारे नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं। जैसे कि मेड आपके सामने है, आई लाइक इट, अगर मैं सिर्फ करूँ आई लाइक, राइट, तो इट आना, ये कुछ चीज अंडरस्टूड भी बाज दफा हो जाती है, लेकिन जरूर आना चाहिए। तो आई लाइक इट, तो आई लाइक नहीं कह सकते। द कार हिट अ ट्री, अब इसको सिर्फ कर दें द कार हिट, और अ ट्री ऑब्जेक्ट ना लाएं, तो ये सेंटेंस ठीक नहीं होगा। ही बॉट द बुक, ही ब्रॉट द बुक, तो अगर हम सिर्फ ब्रॉट कर दें तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट जो है वो लाना पड़ेगा। कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लो। एनीवन, समन, बात समझ लगी आपको? गुड। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब, नॉट पासिंग ओवर, इसको हम, ये ट्रांजिटिव वर्ब को हम पासिंग ओवर कहते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम नॉट पासिंग ओवर कहते हैं। अब द वर्ब डज नॉट टेक एन एक्शन एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ ही वेंट, थैंक यू, ही वेंट, वो गया। अब जाने का अमल ऑब्वियसली ही ने किया, अली वेंट, अली ने किया, ठीक है, लेकिन ही वेंट, वो गया, ये अमल भी उसने किया और अमल का असर भी उसके अपने ऊपर हुआ, यानी इस एक्शन जो था वो जाने का उसने ही किया, राइट। ये बड़ा एक जरूरी है, अभी आप इसको देखेंगे बाद जगह ये खासा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो, उसका कभी भी, इसका कभी भी नहीं ऑब्जेक्ट आता। अब मिसाल के तौर पे देखें, an intransitive verb is a verb that denotes or describes an action which does not pass over to an object. अब the baby sleeps, अब इसको अगर हम करें, what's the verb? Sleeps, who sleeps? The baby sleeps what? इसका कभी जवाब नहीं आएगा, इसका कभी जवाब। The boy is running, what's the verb? Is running, right? who is running, who is running? The boy। अब इसका जवाब जो है वो बॉय सब्जेक्ट आ जाएगा, इज रनिंग व्हाट, ये कभी नहीं आएगा। द एक्शन ऑफ रनिंग डज नॉट टेक प्लेस ऑन एनीथिंग एल्स बट द बॉय हिमसेल्फ, यानी एक्शन जो है वो लड़के के अपने ऊपर ही आ रहा है, किसी दूसरी चीज पे नहीं आ रहा। हाँ, some verbs walk, run, work, pass can be used transitively and intransitively to express different meaning. Many verb can be either transitive or intransitive depending on the meaning and context. अब मिसाल के तौर पे इसको ले लें, he likes to drink. What's the verb? Likes. Who likes? He. Likes what? To drink. अब इसमें लाइक्स वर्ब, ही सब्जेक्ट, टू ड्रिंक इसका ऑब्जेक्ट। टू ड्रिंक हमारा इन्फिनिटिव है, लेकिन यहाँ ये नाउन के तौर पे आया हुआ है, नाउन के तो पीने के मफहूम में आया, नाउन के तौर पे आया। ही ड्रैंक सम जूस, व्हाट्स अ वर्ब? ड्रैंक। Who drank? He subject. Drank what? Some juice. ये उसका object आएगा। The children are playing. What's the verb? Are playing. Who are playing? The children. Are playing what? ये और चीज है ही नहीं। The children are playing. The children are playing. What's the verb? Are playing. Who are playing? The children. Are playing what? फुटबॉल। अब ये आ गया, इन तमाम में देखें ये सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब मिसाल के तौर पे ही वॉक द डॉग, ही वॉक द डॉग, वो कुत्ते को ये एक आमतौर पे आपने देखा लॉट ऑफ पीपल टेक देयर डॉग्स टू द पार्क और ऑन द रोड एटसेट्रा। अब इसमें देखें वॉक, अगरचे बेसिकली ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ ये ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। कैसे? व्हाट्स द वर्ब? वॉक्ड। हु वॉक्ड?
he walked what the dog. अब walked what का जवाब जब आ गया the dog, तो इसका मतलब ये है कि अब ये ट्रांजिटिव बन गया है। अब इस वॉक का मतलब चलना नहीं होता, बल्कि किसी जानवर को चलाना होता है, तो उसका ये आता है ही वॉक द हॉर्स। ये भी इसी तरह ही पास्ड द एग्जामिनेशन। व्हाट्स द वर्ब? पास्ट। हु पास्ड? ही। पास्ट व्हाट? द एग्जामिनेशन। एसवीओ आ गया। आगे देखेंगे फिक्रे में, ही वी वॉक टू द पार्क। अब इधर व्हाट्स द वर्ब? वॉक्ड। हु वॉक्ड? वी। वॉक्ड व्हाट? वॉक्ड व्हाट? क्या टू पार्क आता है वॉक व्हाट में? एनीवन? समवन? हाँ जी, एनीवन? समवन? वॉक व्हाट टू पार्क आता है? और अगर नहीं आता तो टू पार्क वर्ब प्लस क्या है? वर्ब प्लस व्हाट नहीं तो क्या है? हाँ जी, ड्रिंक इज यूज्ड एज नाउन। वेयर यहाँ आ गया, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? ही वॉकड वेयर? टू द पार्क। तो टू द पार्क एडवर्ब है, टू द पार्क एडवर्ब है, ठीक है। टू द पार्क इज एडवर्ब। लेट मी पास, प्लीज लेट मी पास, इसमें व्हाट्स द वर्ब? पास, राइट। इसमें पास व्हाट नहीं आएगा, हु पास? मी पास, राइट। इसमें लेट वाले जुमले में जो सब्जेक्ट होता है वर्ब का, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। ये इस तरह से आ गया। अब हम लिंकिंग वर्ब पढ़ने लगे हैं। जो लिंकिंग वर्ब, एक linking verbs are copular verbs link a subject to a complement. Linking verb must be followed by a complement in order to make the sentence complete. The complement can be a subject complement or an adverbial and occur in two sentence types, which are of subject complement SVC अच्छा। और सब्जेक्ट एडवर्बियल SVA। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ जब SVA होता है तो SVA में एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब मैनर को भी शो करता है, प्लेस को भी शो करता है, टाइम को भी शो करता है, और रीजन को भी शो करता है। लेकिन एस जब एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आता कॉम्प्लीमेंट की जगह पे, बाकी दूसरे एडवर्ब आ जाते हैं जो आप देखेंगे। Linking verb links or connect a subject with a noun, a pronoun, or an adjective in the predicate, or sometimes an adverb. It is a special group of transitive verb that makes a statement not by expressing action, but by indicating a state of being or a condition of the subject के subject किस हालत में है। Linking verb cannot function together with its subject as a complete sentence. अगर मिसाल के तौर पे हम कर दें he is, तो ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। द बेबी सीम्स, बेबी सब्जेक्ट है और सीम जो है वो वर्ब है, तो हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। दे आर हमारा दे सब्जेक्ट है और आर हमारा लिंकिंग वर्ब है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। We see that despite SV, the sentence is not complete. To complete the sense, we require a word, noun or adjective. Such a verb is also called a verb of incomplete predication. अब हम इसको कहते हैं he is happy, एक एडजेक्टिव ले आए तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दे आर हैप्पी, ये भी कंप्लीट हो गया। दे सीम्स हैप्पी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब मिसाल के तौर पे इसकी जगह पे हम नाउन भी ला सकते हैं, ही इज अली, तब भी कंप्लीट हो गया। द बेबी सीम द बेबी सीम्स अ लिटिल किड, राइट। तो इसको द बेबी सीम हसन कर सकते हैं। दे आर चिल्ड्रन, तो ये नाउन ले आए या एडजेक्टिव ले आए, तो इसके साथ हो सकता है।
इसी तरह हम एडवर्ब भी इसके साथ लगा सकते हैं, ही इज एट होम, तो एट होम प्लेस को शो करता है। लेकिन हम इधर हम एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं ला सकते, हम ये नहीं कह सकते ही इज नाइसली ये नहीं कह सकते। इसी तरह द बेबी सीम्स नाइसली, ये नहीं कह सकते, इधर नाइस लाना पड़ेगा, ही इज नाइस, एडजेक्टिव लाना पड़ेगा। एडवर्ब इधर एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं ला सकते। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। Verb be, some grammarian refer to the verb be as copula since this is its main function in English. All forms of be can be used as linking verb. Be is the main verb of the sentence rather than the auxiliary and is used in both SVC and SVA. I'm at office between 9 and 5. So either be am copula verb hai. This is a really good class is copula verb hai. Those books were very expensive. So either be copula verb hai. Or the students have been exhausted since the midterm. तो इधर भी been जो है ये main verb है, exhausted इधर main verb नहीं है, exhausted इधर adjective है, past participle is used as the adjective. The wedding will be in early May, तो be इधर main verb है. यह list of more common linking verb, ये सारे linking verb है. Appear, John appeared happy when the company promoted him. The graduate students are in the class, south, etc. ये सारे जितने भी verbs हैं, ये सारे main verbs हैं और ये common linking verb हैं. They are very common linking verb. Appear, be, feel, lie, look, remain, seem, smell, sound, stay, taste. Right? इसमें एक बात याद रखिए कि इनमें से कुछ जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब भी बन जाते हैं, लेकिन उसका तरीका यही है आ, कि आप इसको देखें कि उसके बाद नाउन आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे जॉन अपीयर्ड हैप्पी, जॉन who is who appeared John appeared what, अब appeared what में happy आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये हैप्पी जो है what नहीं बन सकता क्योंकि हैप्पी नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो ऑब्जेक्ट कभी भी एडजेक्टिव नहीं बन सकता, राइट। अब द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर इन क्लास साउथ रूम एटसेट्रा, आर आर जो है ये लिंकिंग वर्ब है। अब इन क्लासरूम, अब आर व्हाट नहीं है, आर वेयर इन क्लासरूम है। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें हमें होना कि लिंकिंग वर्ब के बाद जो है वो एडजेक्टिव या नाउन भी आ सकता है किसी सेंटेंस में, जैसे इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखें कि ये लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद ये बड़े मशहूर लिंकिंग वर्ब है, बिकम, गेट, ग्रो, फॉल, प्रूव, रन, टर्न एटसेट्रा। अब देखें ये टर्न जो है ये और ये तमाम वर्ब जो हैं ये लिंकिंग वर्ब हैं और ये इनके बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा या नाउन भी आता है, लेकिन ये है कि ये एक्शन को शो नहीं करेंगे। अब ये इसी तरह देख लें, ही बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब व्हाट्स अ वर्ब, बिकेम, हु बिकेम, ही बिकेम व्हाट अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब इसमें व्हाट तो आ रहा है, लेकिन ये बिकेम जो है ये एक्शन को नहीं शो कर रहा, तो ये बिकेम लिंकिंग वर्ब है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इस शी गॉट अपसेट विद हर स्टूडेंट्स, तो इसमें गेट जो है ये हमारा वर्ब है, अपसेट ये हमारा ये उसका आ जाएगा
ये एडजेक्टिव आ जाएगा, और शी जो है ये सब्जेक्ट है, और विद हर स्टूडेंट जो है ये रिलेटेड टू सब्जेक्ट, जो कॉम्प्लीमेंट है अपसेट, उसके साथ जो है वो आ जाएगा। तो ये इन तमाम फिक्रों में ये चीज होती है। कोई क्वेश्चन है तो इसको आप क्लियर कर लें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है इनको समझना। ड्राई ट्रांजिटिव such a such a as cause or give is one that can take a direct object and an indirect object. That music gave me headache. इसका तरीका यही है, gave what a headache, gave to whom, to me। पहले subject plus what या whom करना है, अगर बंदा होगा तो whom और चीज होगी तो what, और उसके बाद अगर फिर भी कुछ फिक्रे में चीज बच गई है तो टू whom या टू what करना है। इधर टू whom या टू what लगाना है, या for whom या for what भी लगा सकते हैं। Right? Some verb give, promise, bring, buy, send, etc. Take two object, one as direct object and other as indirect object. Such verb are called double transitive verb. I promised him a pen. What's the verb? Promised. Who promised? I. Promised what? A pen, direct object. अब what, whom की ऑप्शन खत्म होगी, to whom, him, indirect object। कोई क्वेश्चन, कोई कुछ? आज का टेक्निकल था और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। To find the indirect object, ask to, yeah, for whom or to or forward. They have bought a new car for the officer। अब इसमें what's the verb? Bought। Who bought? Have bought। Who bought? They have bought what? A new car for whom? For the officer। अच्छा, इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चले जाए। हम इसको कर सकते हैं, दे हैव बॉट द ऑफिसर अ न्यू कार, फिर फॉर नहीं लगाएंगे आप, फॉर अंडरस्टूड है। दे हैव बॉट द ऑफिसर अ न्यू कार। आई गेव इट टू हिम। व्हाट्स अ वर्ब? गेव। हु गेव? आई गेव व्हाट? इट। टू whom? टू हिम। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, आई गेव हिम, आई गेव हिम इट। राइट? इट जो है ये बाद में चले जाएगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा बाद में चले जाएगा। इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, टेक्निकल है। Someone, anyone? Hope you are listening to me. Day by day, we have a declining number of participants. We started with some plus 80, and now today we have 40. Anyway, transitive verb of incomplete predication, इसको हम fictative verb भी कहते हैं। These are the verb which take only direct object but still require some word or words to make the sense of the sentence complete. तो सब verb made. What's the verb? Made. Who made? They. Made whom? Ali. Up, they made Ali does not complete the sentence, right? So we need something to complete the sentence, right? So हम इस sentence को बना देते हैं, they made Ali prime minister। तो अब what's the verb? Made। Who made? They। Made whom? Ali। Made what? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट अली को कंप्लीट कर रहा है। जैसे अली इज अ बॉय में बॉय जो था वो अली सब्जेक्ट को कर रहा था, वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन और इंट्रांजिटिव, ये फिक्टेटिव वर्ब जो है वो कहलाता है।
Ergative verb, most verb can be used intransitively, but ordinarily this does not change the role of the subject. He ate the soup, for example, इसमें हम कहेंगे उसने सूप पिया, खाया, तो ये सूप जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये सेंटेंस बन जाएगा. ही एट ये एक तरह से इंट्रांजिटिव उसका बन जाता है, लेकिन अब भी काम करने वाला कौन है? He. Where the only difference is that the letter does not specify what was eaten. By contrast with an ergative verb, the role of the subject changes. Consider it broke the window. में it subject था, वो कोई it कोई गेंद भी हो सकता है, राइट? ये ट्रांजिटिव है. एंड द विंडो ब्रोक ये इनट्रांजिटिव है, लेकिन ये इनट्रांजिटिव वो नहीं है कि जो जिसमें एक्शन जो है वो सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट जो है वो कर रहा है और उसके अपने ऊपर हो रहा है, बल्कि यहाँ विंडो सब्जेक्ट कर नहीं रही बल्कि उसके अपने ऊपर ही हो रहा है. तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब का एक खासा डिफरेंट जो है वो है. तो ये भी इसको भी देख लें. पॉजिटिव वर्ब, इसको इस तरह नहीं. पॉजिटिव वर्ब बाद दफा ये होता है कि हम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वो खत लिखता है, ही राइट्स लेटर, लेकिन हम कहते हैं वो खत लिखवाता है, तो ये एक पॉजिटिव वर्ब बन जाएगा. तो इसका तरीका क्या होता है? पॉजिटिव सब्जेक्ट द टीचर, पॉजिटिव वर्ब गेट्स, और पॉजिटिव उसके बाद वर्ब, उसके बाद पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब आ जाता है. तो वो खत लिखवाता है, द टीचर टीचर खत लिखवाता है, द टीचर गेट्स द एसे एंड द लेटर रिटर्न एवरी डे. यानी ये वो पॉजिटिव है जिसमें काम करवाने वाला है. इसमें काम क्या हो रहा है? वो थर्ड फॉर्म में चले जाता है, और जो पॉजिटिव वर्ब होता है वो मेन वर्ब की जगह पे आता है. जैसे आप देख रहे हैं टीचर है, तो उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो आ गया है. और इसकी मिसालें कुछ, ही गेट्स अ लेटर रिटर्न, अब वो, या ही हैज अ लेटर रिटर्न. इसमें जो पॉजिटिव वर्ब होता है गेट्स, इसकी जगह हैज भी आ सकता है. ही हैज अ लेटर रिटर्न, और इसकी पूरी कॉन्जुगेशन होती है, आप गर्दान इसकी पूरी बना सकते हैं. he gets a letter written, he is getting a letter written, he has got a letter written, he has been getting a letter written, or he got a letter written, he was getting a letter written, he had got a letter written, he had been getting a letter written, he will get a letter written, he will be getting a letter written, he will have got a letter written, he will have been getting a letter written. तो ये सारे, वो खत लिखता है, वो खत लिखवा रहा है, वो खत लिखवा चुका है, वो सुबह से खत लिखवा रहा है, उसने खत लिखवाया, वो खत लिखवा रहा था, वो खत लिखवा चुका था, वो सुबह से खत लिखवा रहा था, वो खत लिखवाएगा, वो खत लिखवा रहा होगा, वो खत लिखवा चुका होगा, वो सुबह से खत लिखवा रहा होगा. तो ये पॉजिटिव है. ये आमतौर पे ये भी सेंटेंस में बच्चों को सिखाने हमें चाहिए. और इधर गेट की जगह पे हैज भी आया. he has a letter written, he is having a letter written, he has had a letter written, he has been having a letter written, he had a letter written, he was having a letter written, he had a letter written, he had been having a letter written, he will have a letter written, he will be having a letter written, he will have had a letter written, he will have been having a letter written. Right? अच्छा, इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब है? हाँ जी, थैंक यू. इसके अलावा रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं, यानी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद वन सेल्फ आता है. रिफ्लेक्सिव वर्ब whose subjects are also their direct object, that is the action of the verb is both committed and received by the same person or thing. Reflective verbs are sometimes identified as being in the middle voice, and as opposed to the active voice or passive voice. अब मिसाल के तौर पे रिफ्लेक्सिव वर्ब मोस्ट इजीली बी आइडेंटिफाइड बाय द यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है? वन सेल्फ. आई एक्सीडेंटली बर्nt माई सेल्फ विद द हेयर ड्रायर. अब इसमें व्हाट्स अ वर्ब? बर्nt. हु बर्nt? आई. बर्nt whom? माई सेल्फ. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक है, लेकिन वर्ब, सॉरी, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक है, लेकिन ऑब्जेक्ट
जो है वो डिफरेंटली हमने उसको बाहर निकाला होता है। तो ये माई सेल्फ जो होता है, ये अगर वी एक्सीडेंटली होता तो अवर सेल्फ हो जाता, ही होता हिमसेल्फ होता, शी होता हर सेल्फ हो जाता। ये वन सेल्फ प्रोनाउन सब्जेक्ट क्योंकि रिफर कर रही होती है तो उसके मुताबिक ही होता। द बेबी इज स्माइलिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर। तो व्हाट्स द वर्ब इज स्माइलिंग, हु इज स्माइलिंग, द बेबी इज स्माइलिंग, वो what at herself, वेयर इन द मिरर। तो ये इस सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। तो ये आज हमने ये चीजें जो हैं ये इसको पढ़ा है। इसके ऊपर आप अब बताएं, आपने कुछ चीजें कुछ समझ आई हैं, कुछ चीज रह गई हो तो आप प्लीज क्वेश्चन जो है वो कर दें, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि हमने कुछ थोड़ा सा कुछ किया भी है। नेक्स्ट पे हम ये मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक से पहले अ, इसकी कुछ थोड़े से तमाम सेंटेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और इसमें आप अपने तौर पे भी प्रैक्टिस करें, मैं इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी कर दूंगा। उम्मीद है पिछली एक्सरसाइज जो है वो आपने हल की होगी। उनमें से कुछ जो सेंटेंसेस हैं उनको हम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गूगल फॉर्म पे बना के आपका एक उसके ऊपर देखूं कि क्या अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको भी है, ताकि वो डायरेक्ट मुझे भी अंदाजा हो जाए। और आज के बारे में कोई फीडबैक को देना चाहे, कोई कैसा आपको समझ लग गई, कोई नई चीज को सीखने में, कोई एनीथिंग। यू पीपल वेरी म्यूट, बोलते ही नहीं अब, ना लिखते हैं। यहाँ लगता है ये मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन इंग्लिश तो यही है। चले, मान लेते हैं इंफॉर्मेटिव। ये इंफॉर्मेटिव से आगे बढ़ के लर्निंग बनना चाहिए। You should learn. By the end of the session, you should feel that you have learned something. Or learning is a skill. Unless you practice it again and again, you are not going to learn much. हाँ, आज बहुत सा नहीं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब भी था। उसमें बहरहाल मैंने आपको ऑप्शन तो दी हुई है कि आप इसको कर लें। वर्कशीट जो थी वो मैंने भिजवा तो दी हुई है। वर्कशीट वो पूरा चैप्टर पर भिजवा दिया हुआ। हाँ, मल्टीपल चीजें तो थी, लेकिन यह है कि एक टॉपिक तो एक ही था। आप उसको देखें जरा, फिक्रों को रख के एक दूसरे के साथ डिस्कस करें और उसको देखें, और जहाँ की कोई कंफ्यूजन हो वो मुझे बताएं आप। आई ट्राई टू रिजॉल्व योर कंफ्यूजन। मल्टीपल चीजें तो है, और बाज़ का तो हो सकता है आपने किसी, क्योंकि ग्रामर में बहुत सी टर्मिनोलॉजी जो है वो होती है, तो बाज़ दफा वो ये ये भी होता है कि एक चीज को हमें पता होता है लेकिन हम उसको नई टर्मिनोलॉजी में फिक्स करते हैं, थोड़ी सी देर लग जाती है। दिस हैपेंस। पर अब इसको देखें, और जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम हो फिर लेट मी नो। अगली में मैं थोड़ी सी आपको इसकी एक्सरसाइज करा के फिर आगे इसमें बनूंगा। और वैसे आई होप के वर्क के ऊपर का चैप्टर जो है वो भी मैं आपको भिजवा भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच, लेट्स कॉल इट अ डे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप लर्निंग।